नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। किसी प्रकार से व्हील चेयर नहीं, पूरा ही स्वस्थ होकर वोट मैदान पर उतरो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और इसलिए मुख्यमंत्री का स्वस्थ होने का मनोकामना करते हुए इस प्रकार का मंतव्य की बीजेपी के महिला मोर्चा नेत्री अग्निमित्रा पाल। सभी जानते हैं कि नंदीग्राम में निर्वाचन प्रचार में जाकर मुख्यमंत्री तथा तृणमूल दल की सभा नेत्री ममता बनर्जी का घायल होने की खबर से राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। इसके अतिरिक्त जब इस घटना को बीजेपी के बहुत नेता इसे मुख्यमंत्री का सहानुभूति पाने का जरिया कहकर कटाक्ष कर रहे हैं, तब मुख्यमंत्री के जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए शिव मंदिर में कामना करते हुए देखा गया बीजेपी नेत्री अग्निमित्रा पाल को। शुक्रवार उन्होंने दुर्गापुर के गोपाल मैदान में परिवार का कुल देवता देवाधिदेव महादेव का पूजा किया एवं वहीं पर मुख्यमंत्री का स्वस्थ होने का कामना किया। उन्होंने इस विषय पर तृणमूल का जिला नेता उत्तम मुखर्जी कहते हैं कि गैस बाबा मोदी बाबा का पूजा करके पहले गैस पेट्रोल का दाम करने का व्यवस्था करे, उसके बाद हो तो मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने का कामना करे बीजेपी ममता बनर्जी के ऊपर घटना करने के बाद उनके स्वस्थ होने के लिए महादेव के पास मनोकामना कर रहा है। जान लीजिए, महादेव कभी भी आपका यह प्रार्थना नहीं सुनेंगे, कहकर जानकारी दिए तृणमूल जिला नेता उत्तम मुखर्जी। इस विषय पर अग्निमित्रा पाल कहती है कि पहले मुख्यमंत्री स्वस्थ हो फिर खेला होगा। इसका जवाब देते हुए तृणमूल नेता उत्तम मुखर्जी कहते हैं कि जवाब तो बांग्ला के लोग देंगे और इसका जवाब बांग्ला के लोग 2021 के निर्वाचन का फल घोषणा के दिन ही बीजेपी को देंगे, कहकर जानकारी दिए उत्तम मुखर्जी। ওনার যে আঘাত লেগেছে সেটা নিয়ে আমি রাজনীতি করব না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য লাশের ওপরেও রাজনীতি করে এসেছেন, কিন্তু সেটা নিয়ে আমরা শিক্ষা নিইনি। উনি যাই করে থাকুন, আমি ওনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। দেবতার কাছে চাইলাম যে বাবা, যারা আমাদের কি বলবো দেবাদিদেব মহাদেবকে যারা অপমান করে, হিন্দু ধর্মের যারা অপমান করে, তাদেরকে সুবুদ্ধি দাও। আমরা তো ছোটবেলা থেকে ঠাকুরকে নমস্কার করে প্রণাম করে তার আশীর্বাদ নিয়ে সব কাজ করেছি, আমাদের বাবা মারা তাই শিখিয়েছেন। সুতরাং যারা ভাবে যে হিন্দু ধর্মের দেবদেবীকে অপমান করে তাদেরকে বলা হবে তারা প্রগতিশীল, তাদেরকে আমি ধিক্কার জানাই। আর তাদেরকে ভগবানের কাছে ওটাই প্রার্থনা করলাম যে সুবুদ্ধি দাও, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাতে সুস্থ হয়ে পড়েন তাড়াতাড়ি, সেটা কামনা করি। এবং তাড়াতাড়ি লড়াইয়ের ময়দানে আসুন, লড়াই হবে, খেলা হবে না, লড়াই হবে। এবং বাবার কাছে এটাও চাইলাম যে 10 বছর এবং তার আগে 34 বছর এবং তার আগে অনেক বছর বাংলার মানুষ যে ঠকেছে প্রতি সরকারের কাছ থেকে, বাবা এবার একটা চান্স দাও, ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদিজিকে একটা চান্স দাও, সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়া যে অপরচুনিটি সেটা দাও, যাতে আমরা সত্যি বাংলার মানুষের জন্য কিছু করতে পারি। শুধু মুখে বুলি নয়, মুখে লেকচার দেওয়া নয়, সত্যিকারের পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট পলিটিক্স, উন্নয়নের পলিটিক্স, মিথ্যা কথার পলিটিক্স নয়, সত্যিকারের উন্নয়নের পলিটিক্স আমরা করে দেখাবো এবং যাতে করে দেখাতে পারি সেই আশীর্বাদ করো। উনি যে কাণ্ডটা করেছেন আমার মনে হয় না ঠিক। যারা সত্যিকারের কারো ভালো চায়, মনে মনে প্রার্থনা করে, ওনারা গণ্ডগোল পাকিয়ে দিয়ে আজকে তার দ্রুত সুস্থ হওয়ার জন্য তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন। আমার তো খুব হাসি লাগলো। যার কাছে উনি প্রার্থনা করলে কিছু বর পাওয়া যায়, আমি তো বলবো এই গ্যাস বাবা আর মোদি বাবার কাছে প্রার্থনা করুন। আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে প্রার্থনা করেন, গ্যাসের দামটা দুম করে 500 টাকা কমে যাবে। সেখানে প্রার্থনা না করে একটা বিজেপি একটা ঝামেলা পাকিয়ে দিয়ে সেখানে একটা অশান্তি তৈরি করলো। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের উন্ডেড হয়ে গেলেন, তিনি আজকে হসপিটালে শয্যাশায়ী আছেন। আবার তার সুস্থ কামনার জন্য তারা কত রকম করতে পারে। আরেকটা কথা শুনলাম যে 34 বছরের বামফ্রন্ট আর 10 বছরের তৃণমূল, আর তার পিছনেটা ওরা জানে না। ভোটের লড়াই আমরা অনেকবার করেছি, ওনারা এবারে নতুন লড়াই করছে। ভোটের লড়াই আমরা অনেকবার করেছি, 34 বছর ধরে লড়াই করেছি। আবার 11 বছরে আমরা শাসন ক্ষমতায় থেকে বিরোধীর সঙ্গে লড়াই করেছি। ওনারা তো নতুন লড়াইটা শুরু করেছেন। এই লড়াই বেশি দিন টিকবে না। কেন্দ্রের সমস্ত মন্ত্রী, ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আছে, সমস্ত রকম যতই মন্ত্রীকে নিয়ে আসুন, অতগুলো মন্ত্রী বনাম আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই। সেই লড়াইয়ে মানুষ দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবে।
विधानसभा वोट के पहले बीजेपी को हराने के लिए बड़ा साथी मिला तृणमूल कांग्रेस को। शनिवार सुबह कोलकाता विमानबंदर पर उपस्थित हुए कृषक आंदोलन के खास व्यक्ति राजेश टिकैत आज वह बीजेपी के विरुद्ध में प्रचार करने के लिए सिंगूर जा रहे हैं। उनका दावी है कि देश में केंद्रीय सरकार ने कृषकों को खत्म कर दिया है। सारा देश में बीजेपी का विस्तार न फैले इसलिए लोगों को समझाने के लिए पश्चिम बंगाल के साथ साथ विभिन्न राज्य में जाकर बीजेपी के विरुद्ध में जनमत तैयार करेंगे। इस दिन दमदम विमानबंदर पर इस कृषक नेता का स्वागत करने के लिए उपस्थित थे तृणमूल श्रमिक संगठन की नेत्री दौला सेन। स्वाभाविक रूप से ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि विधानसभा निर्वाचन में तृणमूल कांग्रेस को सहायता प्रदान करने के लिए यह कृषक नेता बंगाल में आए हैं, परंतु पत्रकारों के समक्ष इस विषय को लेकर टालते हुए नजर आए राजेश बाबू। उन्होंने पत्रकारों को कहा कि जो दल कृषक आंदोलन का समर्थन करेगा उसके पास ही खड़ा रहेंगे वे। यहाँ पे रोल रहेगा। अरे यहाँ किसानों की समस्या देखेंगे क्या क्या है। क्या आप ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे? अरे हमें सपोर्ट का क्या, पहले किसानों से मिलेंगे यहाँ पे, किसानों से मिलेंगे यहाँ पे राकेश। और फिर उसके बाद आपका क्या रोल रहेगा? और रोल रहेगा, यहाँ पे आए हैं, बात करेंगे अभी किसानों से। केंद्र सरकार कर रही है उसका एक्सपोजर करेंगे। हाँ, केंद्र सरकार ने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया। राकेश जी, जिस तरीके से पूरे देश का दौरा करने के बाद यहाँ पे बंगाल ही क्यों चुना? हाँ, तो बंगाल में तो आना पड़ेगा। बंगाल का किसान सबसे ज्यादा दुखी है। आज से तो सभी पूरे प्रदेशों के किसान और पूरे प्रदेश में जाएंगे। विपक्ष बीजेपी से साफ साफ आरोप लगा रहा है कि राकेश टिकैत यह सिर्फ एक ममता को समर्थन कर रहा है, ना कि यहाँ पे कोई अपना ना, हम तो राजनीति में आने की तैयारी हो रही है। उनकी जो राजनीति वहाँ पर चल रही है, जो किसानों का नुकसान कर रहे हैं पूरे देश में, हम तो बता रहे हैं यहाँ पे ये भी बर्बाद होगा पूरा। 26 मार्च का देश बंद, भारत बंद का आह्वान किया, भारत बंद का आह्वान है और पूरा देश में उसका समर्थन मिल रहा है हमको। किस तरीके से बंगाल की धरती पे क्या देखते हैं कि यहाँ से बंगाल पे जीतने के बाद बंगाल पे आप आए हैं, क्या इसके बाद यहाँ मोदी सरकार की आंखें खुलेंगी? और बिल्कुल आंखें तो खुल रही, जो पूरे देश में वे कर रहे हैं, जो भारत सरकार पूरे देश में कर रही है, तो बताएंगे ना यहाँ पे। तो कह रहे हैं हम तो आपकी हर बात मानने तैयार हैं। नहीं, कोई नहीं मानने, हम तो तैयार बैठे हैं बात करने के लिए, पर आप आने तैयार नहीं। कोई नहीं, तो वहाँ है ही नहीं दिल्ली में, सरकारी भागी दिल्ली से है ही नहीं दिल्ली में। तो आप सरकार को ढूंढते ढूंढते बंगाल पहुंचे, ढूंढते आए, यहाँ पता चला कि यहाँ पर आ रही, पूरा देश बर्बाद हो गया। खरीद कहीं नहीं हो रही, MSP पे कानून नहीं है। 3 बिल तो ये हाउस में ले आए और करीब 10 बिल हो रहे हैं जो आने वाले हैं। 1.5 साल के लिए उन्होंने अपने बिलों को रोकने की कोशिश की थी कि 1.5 साल तक, आपकी बात मानते हैं हम 1.5 साल तक रोक देते। नहीं तो 1.5 साल के बाद में क्या होगा? वो बोले थे बैठ के तैयार है बात करने के लिए। बात नहीं कर रहे हैं ना, पिछले 2 महीने से तो बात ही नहीं कर रही सरकार। क्या आप किसी पॉलिटिकल लीडर से मिलेंगे यहाँ पे? ना, हम तो नहीं मिल रहे किसी से। कलकत्ता की जनता से क्या आह्वान करेंगे? जनता से आह्वान है भाई, देश लूट लिया, देश को बचाओ। ये तो समुद्र के रास्ते भाग गए। ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहीं आई थी, ये तो समुद्र का रास्ता खोज रहे, इसे देश को लूट कर भाग गए यहाँ से। आज केंद्र सरकार ने एक फैसला और किया कि 100 सरकारी कोई कंपनियां हैं जिनको वो लोग वापस प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं, उनको बेचने की तैयारी है 5000 करोड़ का फंड करने के लिए। क्या इन ऐसे नहीं, कोई नहीं कंपनी बिकने की। अब उनके कर्मचारी आएंगे, सब साथ में आएंगे। ये तो लुटेरे आ गए देश में, लुटेरों को भगाना है यहाँ। अलीपुरद्वार में शनिवार दोपहर अचानक वज्र विद्युत सहित वर्षा आरंभ हुआ। अचानक इस प्रकार वर्षा होने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अलीपुरद्वार के फालाकाटा के विभिन्न इलाका में बारिश होने से साधारण मनुष्य बहुत ही मुश्किल में फंस गए। इस मूसलाधार बारिश के कारण सड़क पथ, बाजार पथ प्राय शून्य हो गया। लोगों का चलाचल बिल्कुल बंद हो गया। जानकारी मिलती है कि फालाकाटा ब्लॉक के जाटेश्वर में शनिवार साप्ताहिक हाट लगता है एवं मनुष्य सारा सप्ताह जरूरी सामग्री साप्ताहिक हाट से क्रय करने आते हैं, परंतु इस वर्षा के कारण हाट में क्रेताओं को उस प्रकार नहीं देखा गया। मूसलाधार बारिश के कारण हाट व्यवसायियों को नुकसान का सामना करना पड़ा। खेला होवे स्लोगन देकर वोट का माहौल गर्म कर दिए हैं तृणमूल कांग्रेस। खेला होगा और जलपाईगुड़ी का राजनीतिक चाणक्य घर में बैठे रहेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए वोट के पहले अपने खिलवाड़ को लेकर मैदान पर उतर पड़े शहर के अभिज्ञ राजनीतिकविद मोहन बोस। उनका दावी है कि शहर के 25 वार्ड में मोहन बोस ने अपने खिलवाड़ को प्रैक्टिस पर उतार दिए हैं। यह खिलवाड़ ही तृणमूल के चेहरे पर जीत का हंसी लौटाएंगे। दूसरा में तृणमूल के झोली में जाएगा जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा का आसन, कहकर जानकारी दिए तृणमूल के वर्तमान जिला सह सभापति मोहन बोस एवं उनके समय में हुए उन्नति मूलक कार्यों को गिनवाने से भी पीछे नहीं हटे। सबसे ज्यादा समय तक रहे पॉर्ट चेयरमैन के रूप में मोहन बसु।
দীর্ঘদিন পৌরসভার পৌরপ্রধান হিসেবে কাজ করতে গিয়ে জলপাইগুড়ি শহরের যে ডেভেলপমেন্ট, সেই ডেভেলপমেন্ট তো করা হয়েছে, আর এটা সম্ভব হয়েছে মমতা ব্যানার্জির জন্য। এটা ঠিকই যে এই ডেভেলপমেন্ট তো একদিনে হয়নি। 90 সাল থেকে জলপাইগুড়ি পৌরসভার সাথে আমি যুক্ত, 17 বছরের চেয়ারম্যান। তো স্বাভাবিকভাবে বর্তমান সরকার মমতা ব্যানার্জির মুখ্যমন্ত্রীত্বে এবং আমার পৌরসভার MA ডিপার্টমেন্ট যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে বলে এগুলো সম্ভব। তো স্বাভাবিকভাবে সব রকম ডেভেলপমেন্টই এই শহরে করা হয়েছে। হাইবার 100-র উপরে হাইবার্স করা হয়েছে, প্রতিটা পোলে LED লাইট লাগানো হয়েছে। মানুষের ন্যূনতম যে চাহিদা পৌরসভার কাছে, সেই সমস্ত চাহিদা আমরা পূরণ করতে সম্মত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে আমার বিশ্বাস মানুষ এবারেও আমাদের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে সমর্থন করবে। বিজেপির আপনার সর্বক্ষেত্রে যে দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি এবং বেকারত্বের যে যন্ত্রণা, সেগুলো বেড়েছে, কমেনি। স্বাভাবিকভাবে মানুষ তার ভুল বুঝতে পারবে। আমাকে যে কেউ ডাইরেকশন দেবে তার মতন করে না, আমি কোনোদিনও সেটা করিনি, এবারও সেটা করব না। খেলা হবে, আমি আমার মতন করে খেলবো, আমার প্লেয়ারদের দিয়ে আমি খেলবো। সব মাঠই আমার চেনা, প্লেয়ার প্র্যাকটিস করছে, ফাইনাল খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এটুকু বলতে পারি। 2রা মেয়ের জন্য তারা অলরেডি প্রস্তুতি নিচ্ছে, শুরু করছে। कलकत्ता में चाय गामी का भरा हुआ गाड़ी से चाय पत्ता चुराने के आरोप में 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। चाय पत्ता चोरी का शिकायत दर्ज होते ही धूपगुड़ी थाना का पुलिस जांच पड़ताल पर उतरकर 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। शुक्रवार रात में अलीपुर द्वारा जिला के पीरपाड़ा से 4 व्यक्ति को एवं फालाकाटा थाना इलाका से 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया धूपगुड़ी थाना का पुलिस। इन आरोपी में 1 जन का नाबालिग होने की जानकारी मिलती है। इसमें सुभाष राय, राकेश दास, रतन बारुई एवं नाबालिगा लड़का बीरपाड़ा एवं अजीजा रहमान फालाकाटा थाना का नरसिंहपुर इलाका का निवासी है। इन आरोपियों के विरुद्ध में भारतीय दंड विधि के 789 धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा जानकारी मिलती है कि पिछले 7 मार्च आंगड़ा भाषा इलाका से कच्चा चाय पत्ता चुराने का घटना घटा। उस गाड़ी के चालक ने इस घटना का लिखित शिकायत थाना में दर्ज करवाया। शिकायत दर्ज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल पर उतरकर 5 आरोपी को गिरफ्तार करती है। जानकारी मिलती है कि चाय पत्ता से भरा हुआ गाड़ी आसाम से कलकत्ता की तरफ जा रहा था। बीच में गाड़ी चालक ने आंगड़ा भाषा इलाका में कुछ देर के लिए विश्राम लिए थे, तभी आरोपी ने इस घटना को समय देखकर अंजाम दे दिया। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।